हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर बच गया है उसको हम पूरा करते हैं, देखते हैं उसे। While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to each only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, श्रीमान हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे और गंभीर एवं कोमल स्वर में जो उन्होंने मुझसे कहा था, "मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है और मैं तुम्हें बताऊंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। कल तुम्हारा नया मास्टर आएगा। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सावधान रहो." What a thunderclap these words were to me! Oh, the wrath that was what they had put up at the town hall. चौकस अत्यधिक प्रोजाइट की आवाज़, मेरे लिए ये शब्द कितने वज्रपात थे। ओह, ये दुष्ट लोग, यही तो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up, and am hammered to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ क्यों मैं मुश्किल से जो मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, मुझे अब और नहीं सीखना चाहिए, मुझे यहीं रुकना चाहिए। फिर ओह सॉरी, अपना पाठ न सीख पाने, पक्षियों के अंडे ढूंढने या सांप पर फिसलने के लिए कितना खेद है। मेरी किताबें, मेरी परेशानी, जो कुछ समय पहले इतनी परेशानी लगती थी, ढोना इतना भारी, मेरा व्याकरण और सेंट्स का मेरा इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और एम हेमल का यह विचार कि वह दूर जा रहा है, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, ने मुझे उसके शाप के बारे में सब कुछ भुला दिया। और वह कितना चिड़चिड़ा था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the place were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. गरीब आदमी इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही उसने अपने बढ़िया रविवार के कपड़े पहने थे। और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठते थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें भी इस बात का अफसोस था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं जाते। यह हमारे गुरु को उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका जो था वो अब नहीं रहा। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to save that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब मैं यह सब सोच रहा था,
मैंने अपना नाम पुकारा, अब मेरी बारी थी। मैं क्या अपना टर्न नहीं दे सकता था ताकि मैं कृदंत के लिए उस भयानक नियम को पूरी तरह से, बहुत जोर एवं नियम पूर्वक रूप से, एक और गलती किए बिना बोल सकूं। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और यह देखता रहा, अपनी मेज को पकड़े हुए। मेरा दिल धड़क रहा था, मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। I heard M. Himmel say to me, I want to scold you, little Franz, you must feel bad enough. See how it is every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsek. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the roast worst poor little Franz, we have all a great deal to reproach ourselves with. मैंने श्रीमान हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांज, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था। देखो यह कैसा है, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। यह अब तुम्हें देख रहे हो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। वह अल्सेस को बड़ी समस्या है, वह कल तक सीखना चाहती है। अब वहाँ के लोगों को तुमसे कहने का अधिकार होगा, यह कैसा है, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रांज, हम सभी के पास खुद को दोषी ठहराने के लिए बहुत कुछ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे, वे तुम्हें खेतों या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे ताकि थोड़े और पैसे मिल सकें। और मैं भी दोषी हूँ क्या, मैंने तुम्हें अक्सर अपने पाठ पढ़ाने के बजाय मेरे स्कूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? Then from one thinking to another, M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among youths and never forget it, because when our people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listening so carefully and that he had never explained. फिर एक बात से दूसरी बात पर मिस्टर हैमिल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक है। हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब किसी लोगों को गुलाम बना दिया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गुलामी कर ली है, उसके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ा। मैं ये देखकर चकित था कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से समझा। Everything with so much patience
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads off at one stroke. उसने जो कुछ भी कहा वह मुझे बहुत आसान था। मुझे यह भी सोच उसने मुझे जो कुछ भी कहा वह बहुत आसान था। मुझे यह भी सोचिए कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना और उन्होंने कभी नहीं समझाया था। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने जो भी कुछ मुझसे कहा वह बहुत आसान था। मुझे यह भी सोचिए कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने कभी नहीं समझाया था। Everything with so much patience, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. सब कुछ बहुत धैर्य के साथ ऐसा लग रहा था मानो बेचारा आदमी जाने से पहले हमें वह सब कुछ दे देना चाहता था जो वह जानता था और एक ही झटके में वह सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर he had a lesson in writing that day. Himmel had new copies for us written in a beautiful round heart France Alsace that they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our decks. You're outed to have seen how every one set to work and how quiet it was. व्याकरण के बाद हमें लेखन का पाठ पढ़ाया गया। उस दिन श्रीमान हेमल ने हमारे लिए नई कॉपियां मंगवाई जो एक सुंदर गोल हार्ड कॉपी में लिखी थी। फ्रांस अल्सेस वे स्कूल के कमरे में हर जगह लहराते छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे जो हमारी डेस्क के ऊपर लगी छड़ से लटके हुए थे। आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम पर लग गया और कितना शांत था। केवल कागज पर कलमों की खरोंच की आवाज़ थी। आज की वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, जिससे कि once some battles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracking their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons could very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons. एक बार कुछ भृंग उड़कर आए लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सबसे छोटे भृंगों ने भी उन्हें जो मछली के कांटों जैसे ढूंढने में लगे थे, मानो यह भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गूंज रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मनी में गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth, that the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for the must leave the country next day. जब कभी मैं अपनी लेखन से ऊपर देखता कि मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर बिना हिले बैठे हैं और पहले एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को, मानो वह अपने दिमाग में यह तय करना चाहते हैं
कि उस छोटे से स्कूल में के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता होगा। कल्पना कीजिए 40 साल से वह उसी जगह पर था। खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसके सामने उसकी कक्षा बिल्कुल वैसी ही, बस डेस्क और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। बाग में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे और होपवाइन जिसे उसने खुद लगाया था खिड़कियों से छत तक लिपटी हुई थी। बेचारे यह सब छोड़कर उसका दिल कितना टूट गया होगा अपनी बहन के ऊपर के कमरे में घूमते हुए, अपने सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After he writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba be bo boo down there at the back of the room. Old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद हम इतिहास का पाठ पढ़ाया गया और फिर बच्चों ने बा बी बो बू का जाप किया। वहाँ कमरे के पीछे बूढ़े होसर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था और अपने दोनों हाथों में प्राइमर टुकड़े हुए उनसे अक्षर लिख रहे थे। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ में भावना भी कांप रही थी और उसे सुनना इतना मज़ेदार है था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते हैं। मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angles. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so pale. My friends said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. अब फिर चर्चा की घड़ी ने 12 बजाए। फिर एंजेलस उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे पुरुषिया के सैनिकों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, बहुत पीला। मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। All at once the church clock struck 12, then the Angles. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so well. अब फिर चर्चा की घड़ी में 12 बजाए। फिर एंजेलस उसी सन ड्रिल से लौट रहे पुरुषिया के सैनिकों की आवाज़ें हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। मिस्टर हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, बहुत पीला। मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, टुक a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. मेरे दोस्त, उसने कहा, मैं लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था। वह आगे नहीं बोल सका। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा, चाक का एक टुकड़ा लिया और पूरी ताकत से लिखते हुए उसने जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. Vive la France. फिर वह रुका और अपना सिर दीवार से टिका दिया और बिना कुछ कहे उसने अपनी ओर से हमारी ओर इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हो, खुल के जियो, विवे ला फ्रांस। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।